وہ لمحہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے گی، ہاں وقت آ گیا ہے، اب تم اسے دیکھو گے، موت کے فرشتے کو، اسرائیل علیہ السلام۔ یہ وہ فرشتہ ہے جسے آپ کا دوست بن کر آنا تھا، بشرطیہ آپ نے صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزاری ہوتی، لیکن بے شک آپ نے اس سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، وہ شراب، وہ نائٹ کلبز یاد ہے؟ تم نے خود کو نہیں بچایا، تم حرام کی طرف گئے، تم نے جواز پیش کیے، تم نے بے پرواہی برتی اور صحیح ثابت کرنے کے لیے فتوے تلاش کیے۔ اور یہ وہ لمحہ میرے دوست جب آپ کو ندامت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل ایک دوست کی طرح آپ کا استقبال نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے عذاب کے ایک خوفناک فرشتے کے روپ میں ہیں۔ واضح ہو چکا ہے، تم جنت نہیں جا رہے، اگر تم جاتے تو اسرائیل نے تمہیں اس طرح خوفزدہ نہ کیا ہوتا۔ اسرائیل آپ کی روح کو آپ کے جسم سے الگ کرنے آ چکے ہیں۔ آپ اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے اوپر لوگ ہیں جو آپ پر جھکے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک گھڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور اندھیرا بھی۔ آپ کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ جنت میں یا پھر دوزخ میں؟ لیکن نہیں میرے دوست، آپ کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ پہلی منزل تو قبر کی ہے، جس کا عذاب ان لوگوں کا انتظار کرتا ہے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے جانے پہچانے لوگ ہیں، آپ کے پیارے، آپ کی والدہ، بھائی بہنیں، آپ کے سارے گہرے دوست اور ساتھی، لوگ جو آپ کے لیے فیملی سے زیادہ قریب تھے، لوگ جن کے ساتھ مل کر آپ نے سینکڑوں گناہ کیے، وہ اوپر سے جھک کر تمہیں قبر میں پڑا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوست، اس گھڑے میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ آپ کو جرم کا احساس ہوتا ہے اور پچھتاوا آپ کی روح کو بھر دیتا ہے۔ آپ واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو امام کی آواز سنائی دیتی ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی قرآن سنا تھا، لیکن یہاں امام کی نظریں آپ پر ہیں اور وہ آپ کی روح کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کے جاننے والے قریب آتے ہیں اور آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ آپ کی قبر کو بند کرنے لگتے ہیں۔ جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا، اتنی زیادہ مٹی آپ پر ڈال رہا ہے۔ آپ کو مٹی پر لگتے ہوئے بیلچے کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ وہ شخص جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ پر لکڑی کے ٹکڑے ڈالنے آتا ہے۔ آپ سفید کفن میں ہیں، زندگی فنا ہو گئی ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے کیا پایا اور کیا ساتھ لے کر آئے؟ تو نے مجھے دھوکہ دیا، اے بناوٹی دنیا، تو نے کھوکھلی چیزوں سے مجھے دھوکہ دیا، ٹی وی سے، فلموں سے۔ تو نے حرام کی لذت چکا کر میری زندگی برباد کر دی، اور آج تو نے مجھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، خالی ہاتھ۔ کہاں گئی آج وہ تمہاری جائیداد؟ کہاں ہے تمہارا سامان زندگی؟ کیا ہوا؟ تمہیں خود پر بہت غرور تھا، اب پڑے رہو اس گڑھے کے اندر، اس سرد زمین کی آغوش کا مزہ چکھو۔ یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، وہ تم پر مٹی پھینک رہے ہیں۔ دنیا رنگوں سے بھری تھی، مگر یہاں صرف اندھیرا ہے۔ سوئی کے نا کے برابر تک روشنی نہیں، نہ ہی کوئی رنگ۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، اپنی قبر میں خوش آمدید۔ اب تم یہاں رہو گے۔ جس ندامت کا احساس تمہیں اب ہو رہا ہے، کاش تم اپنی زندگی میں اسے محسوس کر لیتے۔ تم اپنے ہاتھوں کو کھول کر دعائیں مانگنا چاہتے ہو، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ زمین تمہیں سختی سے جگڑ چکی ہے۔ تم اپنے دانت پیسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بے بس ہو، اور اب جبکہ بہت دیر ہو چکی ہے، تمہیں افسوس ہو رہا ہے۔ وہ ذات جس نے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی نعمتیں اور رزق دیا، تمہیں ماں دی، جس نے ساری زندگی تمہیں اپنی محبت کے سہارے رکھا، جس ذات کے تم ناشکرے تھے۔ تم ندامت اور پچھتاوے سے لبریز ہو۔ تم سوچتے ہو شرم آنی چاہیے مجھے، میں کتنا بے وقوف تھا، کس قدر باعث شرم۔ تم اس بے وقوفی پر سارا غصہ خود پر نکالنا چاہتے ہو، مگر نہیں نکال سکتے۔ تم التجا کرتے ہو، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں، واللہ میں اپنے ہر عمل پر نادم ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے ایک اور موقع دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں یوں لاچار و بے بس خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ میں نے اس دنیا کی رنگینیوں سے خود کو دھوکہ دیا، اس بناوٹی دنیا نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اے اللہ، اے میرے رب،
मैं सांस लेना चाहता हूँ। ए अल्लाह, मुझे एक और मौका दे। मैं मौत तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी कुरान पाक खोल कर नहीं पढ़ा। मेरी गफलत ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ए अल्लाह, जी मेरे भाइयों और बहनों, आप इल्तिजा, आजिज़ी, वादे और ना जाने क्या कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम उसका नाम पुकारना चाहते हो, चीखो, जितना चाहो चीखो। आज तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी मदद कर। तू मुझे इस गड्ढे में छोड़कर कहाँ जा रहा है? मेरा हाथ पकड़। क्या कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर मुझे कुछ होता तो आपकी नींदें उड़ जाती थीं। माँ, मैं अजियत में हूँ। क्या आपको एहसास नहीं हो रहा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आपने मेरी पिटाई क्यों ना की जब मैं ये सारे गुनाह कर रहा था, जब मैं इतनी नमाजें छोड़ रहा था? अब्बू, भाई, मेरे साथियों, मेरे गहरे दोस्तों, मैं समझता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी बेवफाई नहीं करेंगे। प्लीज तुम में से कोई एक अपना हाथ दो, मुझे बाहर निकालो। मेरे दोस्त, तुम जितनी ताकत से पुकार सकते हो पुकार लो, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। यहाँ एक ही है जो तुम्हारी आवाज सुन सकता है, अल्लाह। सिर्फ अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन सकता है। क्या तुम अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते हो? कहाँ गए वो लोग जिन्हें तुमने अल्लाह से बढ़कर रुतबा दिया? कहाँ है तुम्हारा माशूक, वो जिसने कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे तुमने हर शय से बढ़कर मोहब्बत की? आज कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत? वो दौलत कहाँ गई जिसे तुम खुदा समझकर पूजते थे? तुमने उसके लिए अपना दीन बेच दिया था, याद है? तुमने नमाजें नहीं पढ़ी क्योंकि तुम्हारा बॉस काम के दौरान इजाजत नहीं देता था। तुमने एक चेक के लिए अपना दीन बेच दिया और दुनियावी इनामात का इंतखाब किया। जरा मुझे दिखाओ कि आज तुम्हारा बॉस कहाँ है, तुम्हारा सारा पैसा कहाँ है। सिर्फ अल्लाह तुम्हें सुन सकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है अल्लाह के साथ। तुमने गलत किया, तुमने कभी दुआ के लिए हाथ तक ना उठाए। मेरे दोस्त, तुम इतना रो रहे हो कि तुम्हारी आसपास की जमीन भीग रही है। यही तुम्हारा नया घर है और यहाँ तुम्हें अजाब दिया जाता रहेगा क़यामत के दिन तक। हर सुबह और हर रात तुम्हें जहन्नम दिखाई देगी। जहन्नम तुम्हारा अगला घर होगा हमेशा के लिए। तुम अल्लाह से ये दरख्वास्त भी नहीं कर सकते कि वो कब्र का इजाब हटा ले और अब्दी जिंदगी की तरफ तुम्हें ले जाए, क्योंकि आगे जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है और जहन्नम का अजाब कब्र से ज्यादा सख्त है। तुम ये दरख्वास्त नहीं कर सकते कि रुको, तुम्हें अजाब दिया जाता रहेगा। क्या यही सब कुछ आप भी चाहते हैं? क्या आपको इसकी जरूरत है? आइए मैं आपको जहन्नम के बारे में बताता हूँ। जहन्नम हर चीज से बदतर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरे दोस्तों, क्या इसकी जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसकी जरूरत है? क्या इसकी जरूरत है कि अपनी जिंदगी को इन बेमानी चीजों में जाया कर दिया जाए? क्या जरूरी है कि हमेशा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए आखिरत के बदले महज इन चंद दुनियावी फायदों के लिए, इस फानी दुनिया के लिए? इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे, मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते या जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ते। क्या हुआ, हमारे पास हमेशा कोई बहाना होता? क्या ऐसा नहीं है? मैं इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता, मैं उस वजह से नमाज नहीं पढ़ता। ये बहाने काम नहीं आएंगे जब आप ज़ेर ज़मीन होंगे। कोई ये नहीं कहेगा, ठीक है इसे जाने दो, ये अच्छा इंसान था। होश में आओ। आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स खुद को समझता क्या है जो मुझ पर गरज रहा है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके नफ्स के खिलाफ हूँ। आपकी मदद करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी आखिरत को बचाने के लिए आपका रब आपको माफ करना चाहता है। एक हदीस क़ुदसी में अल्लाह इरशाद करते हैं, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। एक और हदीस क़ुदसी में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा मेरी जानिब 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी जानिब 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी जानिब चल कर आता है तो मैं उसकी जानिब दौड़ कर जाता हूँ। देखा, अल्लाह तो आपको माफ करना चाहता है। तो बस 1 कदम उठाएं, सिर्फ 1 कदम। आज ही अपनी जाए नमाज बिछाएं और कहें, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे रब, मैं दिन में 5 मरतबा आपके सामने हाजिर होऊंगा आज से।
अपने कर्म से मुझे कबूल फरमा लें। तेरे दर के सिवा और कोई दर नहीं। और मेरी बात सुनने के बाद अगर अब भी आप बहाने तलाश कर रहे हैं तो जान लीजिए ये बहाने इब्लीस यानी शैतान की तरफ से हैं। एक अहमक की तरह आपने उसे अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल दे दिए। आज आपके होश में आने और इस्लाम की दावत को मजबूती से थाम लेने का वक्त है। हमारे नबी का इरशाद पाक है, कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह हम सबको ये बागात अता करे इंशाअल्लाह। आइए हम उन लोगों में से बने जो ये कहते हैं, ऐ मौत आ जा और मुझे ले चल, मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। आइए ये कहें कि ए इस्राईल अलैहिस्सलाम खुश आमदीद, उन्हें एक दोस्त के रूप में आने दें। आइए इस अजीम फरिश्ते को गले लगाएं और कहें, मुझे ले जा हमारे प्यारे नबी के पास। मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, मुझे मेरे रब के पास ले चलिए। मुझे मिलने दो उस जात से कि जिसने मुझे जरूरत की हर शय दी। हमें देखने दें हमारा इतना ख्याल रखने वाला रब कैसा है। हमें हमारे पैदा करने वाले के पास ले चलिए। आइए हम अपनी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाएं, वहां भी हम एक दूसरे को देख सकें और फिर जन्नत में हमारा दाखला हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। इसकी कतन कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। एक खुश्क लकड़ी बनने की कतन कोई जरूरत नहीं है जहन्नम का ईंधन बनने की। महज चंद गुनाहों की खातिर ऐ मेरे करीम खालिक और मेहरबान परवरदिगार, तेरी ये मखलूक और ये बंदा दोनों सरकश है और कमजोर भी, गाफिल है, नादान है, बेमार है, नीच है, गुनाहगार है, उम्र रसीदा है, गलत काम करने वाला है, एक भागे हुए गुलाम की तरह। लेकिन आज 40 साल बाद ये तेरी जानिब पलट आया है और तेरी बारगाह में सर को झुकाना चाहता है। वो तेरी रहमत में पनाह मांगता है। ये अपने अनगिनत गुनाहों और खताओं का एतराफ करता है, शक में मुब्तला है और बेपनाह दुखों का मारा ये शख्स तेरी मिन्नत करता है, तुझसे इल्तिजा करता है। अगर तू अपनी रहमत कामला के सदके इसे कबूल कर ले, इसे माफ करे और अपनी रहमत से साए में ले ले, तो यही तेरे शायान शान है, क्योंकि तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अगर तूने मुझे कबूल ना किया फिर मैं किसके दर पर जाऊं, और कोई दर है कहाँ तेरे सिवा कोई पालने वाला नहीं जिसकी अदालत से रुजू किया जा सकता है। इबादत की कोई हकीकी चीज नहीं है जिसमें मैं पनाह चाह सकता हूं।